یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک اور ہوسٹ ہے جن کا نام ہے محمد حسن اتاری۔ تو حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مبین بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو جی حسن بھائی آج آپ میری مدد کریں گے، یعنی آج آپ پروگرام لے کے چلیں گے یہ والا؟ جی میں آپ کی ہیلپ دونوں مل کے لے کے کریں گے؟ جی آپ کی ہیلپ کروں گا، بالکل۔ کوچ بنوں گا آج آپ کا انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورۃ النازعات آیت نمبر 15 تا 26۔ ماشاءاللہ۔ جی انس بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى،
فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अनस भाई आपने तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह ताला आपको मजीद से मजीद बरकतें अता फरमाए। चलें प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरीद भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरीद भाई, आज आप हमें कौन सी नात सुना रहे हैं? सुबह तैयबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। माशाल्लाह, सुबह तैयबा में हुई बटता है बारा नूर का। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 सुबह तैयबा में एक बटता के बड़ा नूर का। सुबह तैयबा में एक बटता के बड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया के तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया के तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का। तू गए
بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دان صدقہ نور کا اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا اے رضا گے احمد نوری کا فیض نور گے اے رضا گے احمد نوری کا فیض نور گے رضا گے احمد نوری کا فیض نور گے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیسا نور کا اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ ماشاءاللہ فرید بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری آواز میں نعت پڑھی. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. مدنی لیکن ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنا سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں. ہمارے سوشل میڈیا کا لنک ایک کہ یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر ہمارا ایک پیج ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل کے نام سے. اس کو آپ سبسکرائب کریں فالو کریں لائک کریں کمنٹس دیں اور فیڈ بیک بھی دیں. اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کریں. جی بالکل. جی مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شان بہت 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 اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج میں عربی الفاظ سناؤں گی. ستارے کو عربی میں نجمن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی حسن بھائی اچھے الفاظ میں ایک ہی سنا ہے ستارے کو عربی میں نجمن کہتے ہیں اور ان کا جواب ان کو یاد بھی ایک ہی ماشاءاللہ. ہوگا شاید نہیں یاد تو ہو سکتا ہے ہو سکتے سارے یاد ہوئے ہاں یاد کیے انہوں نے اور سنائے ایک ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی اگلی سبحان کال. اللہ. میرا نام محمد ریحان الطاہری بغداد افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. آج کے عربی لیسن میں میں نے یہ سیکھا کہ مچھلی کو عربی میں سمکن کہتے ہیں, ستارے کو عربی میں نجمن کہتے ہیں اور مکھن کو عربی میں زبدتن کہتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. تو حسن بھائی انہوں نے عربی کے الفاظ سنے کل کے عربی الفاظ سنے کل کے انہوں نے عربی الفاظ سنا اور اچھے سنا ہے رک رک کے سنا ہے سمجھ میں بھی آیا. آج واہ جو ماشاءاللہ. کل جو کال شامل نہیں کر سکے تو یہ کل کی ریکارڈڈ کالز تھی تو آج ہم اپنے پروگرام میں تھوڑا وقت تھا تو اس لیے ہم کال شامل کر لیتے ہیں. جی ایک اور کال دیجیے. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شان بہت اچھا لگتا ہے. آج کے پروگرام میں میں نے یہ کہا آج میں آپ کو عربی الفاظ سنانا چاہوں گا. مچھلی کو عربی میں سمکن, مکھن کو عربی میں زبدتن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی حسن بھائی انہوں نے بھی اچھے سنا ہے 2 الفاظ سنا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. اچھے سنا ہے جواب اچھا تھا ماشاءاللہ. درست ہے ان کا جواب. جی جواب درست ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی تو اور بھی کالز ہیں ہمارے پاس کچھ تو جی مدنی لیکن ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ کچھ نہ کچھ نئے عربی الفاظ سیکھتے ہیں. آج ہم یاد کریں گے کہ ٹرین کو عربی میں کیا کہتے ہیں, گاڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں, ہوائی جہاز کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو چلیں بڑھتے ہیں.
बच्चों गाड़ी को अरबी में क्या कहते हैं? सय्यारतुन। क्या कहते हैं? हवाई जहाज को अरबी में तौइरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेन को अरबी में क़ितारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार को अरबी में सय्यारतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाई जहाज को अरबी में तौइरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेन को अरबी में क़ितारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार को अरबी में सय्यारतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाई जहाज को अरबी में तौइरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ट्रेन को अरबी में क़ितारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार को अरबी में सय्यारतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाई जहाज को अरबी में तौइरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? माशाअल्लाह। और ट्रेन को अरबी में क़ितारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद हुए आप लोगों को? किस किस को याद हुए? किस किस को याद हो? जी चले कौन बताएगा कि कार को अरबी में क्या कहते हैं? कार को अरबी ज़बान में सय्यारतुन कहते हैं। खड़े हो जाए। आपका नाम? हसन। हसन नाम है। पक्का कार पसंद है आपको? जी। अच्छा, इनका जवाब दुरुस्त है। वाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह। जी अगला चले अब हवाई कौन जहाज बताएगा कि हवाई जहाज को क्या कहते हैं? चले आप उससे पूछ लेते हैं जो बैठा हो हवाई जहाज में। कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? चले आप सोच लेते हैं। इनसे पूछ ले। हवाई जहाज को अरबी में तौइरतुन कहते हैं। तौइरतुन कहते हैं। आपका नाम? हाशिर नदीम। हाशिर रजा। हाशिर भाई का भी जवाब दुरुस्त है। वाह माशाअल्लाह, बहुत जल्दी याद कर लिया। जी चले ट्रेन को कौन बताएगा कि अरबी में क्या कहते हैं? कौन बैठा है ट्रेन में? नहीं बैठा है? चलो उनसे पूछ लेते जो नहीं बैठे हैं। चले कौन बताए? इनसे सामने वाले से। ये ले क्या कहते हैं? किदारुन। क्या? किदारुन। क़ितारुन। आपका नाम? मोहम्मद अनस रजा तारी। अनस रजा भाई। अनस रजा भाई का भी जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हम रिवाइज कर लेते हैं एक मरतबा वापस। कार को अरबी में क्या कहते हैं? सय्यारतुन। क्या कहते हैं? हवाई जहाज को अरबी में तौइरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ट्रेन को अरबी में क़ितारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये था आज के हमारे अरबी अल्फाज जो यहाँ के बच्चों को तो याद हुए, उन्होंने हमें सुनाए भी। उम्मीद है कि मदनी चैनल के नाजरीन को भी याद हुए होंगे। कल हम एक नई चीज़ सीखेंगे। कल माशाअल्लाह। अब कल क्या सीखेंगे कल बताएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमारे हसन भाई ने आज कुछ अरबी अल्फाज सुनाए। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की जानिब, जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों की शान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अशील भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अशील भाई, आज आप हमें क्या बताना सिखा रहे हैं, उसका पूरा फॉर्मेट हमें पेश। मैं आज जंबो पेंसिल बॉक्स बनाना सिखा रहा हूँ, जंबो पेंसिल बॉक्स। यानी बड़ी पेंसिल। अच्छा जी तो इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड। बिल्कुल। कार्डबोर्ड चाहिए और इसके लिए हमें पेंसिल और स्केल चाहिए जी और हमें ग्लू स्टिक चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद हमें वाइट ग्लू चाहिए और टेप चाहिए कागज़ का। ठीक है, कागज़ का टेप चाहिए और फिर हमें चाहिए गिफ्ट पेपर जिससे हम इसको और डेकोरेट कर सकें। तो सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड को 3 पीस में काटना है। सबसे पहले आपने ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है 23 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 18 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। माशाअल्लाह। दो आपने इस तरीके से स्क्वायर बनाने। तो इसके बाद आपने इस तरीके से एक स्क्वायर बनाने। इसकी भी 23 सेंटीमीटर लेंथ है और 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो फिर इसके बाद आपने इनको एक साथ जोड़ लेना है। तो सबसे पहले आपने टेप की मदद से इसको आपने जोड़ना है। कट कर तेरे जिक्र से ही दिन अपना वैसे सिंधु इसको कितनी देर में लग जाती, कितनी देर लगती है इसको बनने में? इसमें 15 मिनट लग जाएंगे। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर लगती होगा। बस इसका फॉर्मेट समझना, बाकी सब आसान है इसमें। अच्छा माशाअल्लाह। टेप खराब हो गया वाला। जी बच्चों की शान। जी
कुछ कॉल्स हैं हमारे पास, जब तक हमारे अशील भाई बना रहे हैं तो कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। बच्चों की शान अशील भाई माशाल्लाह। तो मदनी में लेकिन नाज़रीन प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे अशील भाई कैसे बना रहे हैं, और आपने भी ट्राई करना है घर जाके, ठीक है? और अशील भाई को फॉलो करना है ताकि अच्छा बने आपका। इंशाल्लाह बिल्कुल, जैसे ये बनाना है वैसे ही बनाना है, सेम टू सेम। तेरा नाम जी मदनी में लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, जब तक हमारे अशील भाई बना रहे हैं तो हम अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। जी भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपका। जी अगली कॉल। मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैं जिला रिंजा खान अर्ज कर रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपको प्यारा लग रहा है और प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। जी अगली कॉल। मैं राजनपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी हमारा मदनी मकसद क्या है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सैद रज़ाक अत्तारी है, मैं अरब शरीफ से बात कर रहा हूँ। प्यारे नौबीन भाई, मुझे आप बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे आपका सिलसिला भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन। माशा जी अगली कॉल। भाई, उम्मीद है आप ठीक होंगे। प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन। आपका नाम क्या है भाई? सिद्दीक। माशाल्लाह, आपका? हंजला तारी। हंजला तारी। आपके अब्बू का नाम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तारी। जी उवैज़ तारी। उवैस रज़ा तारी। और आपके अब्बू का नाम? उवैस। ओएस। आप बच्चों के शाम प्रोग्राम देखते हैं? जी बोले। जी माशाल्लाह, अंजला भाई और सिद्दीक भाई आज हमारे साथ हैं, तो इंशाअल्लाह तवज्जल ये भी हमारे प्रोग्राम में होंगे। तो आप ये तशरीफ। इनका निगरान शूरा से कोई लिंक है? जी रिश्ता है। जी रिश्ता है। अब क्या रिश्ता बताएंगे आप? बताएं। नवासे होते हैं उनके, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। नवासे हैं माशाल्लाह। माशाअल्लाह नवासे नवासे निगरानी शुरा की नवासे नवासे आज हैं। दोनों आए हैं हमारे पास माशाअल्लाह। और ये हमारे प्रोग्राम में बैठेंगे। तो आप वहाँ बैठ जाए, ऊपर आप वहाँ बैठ जाए, और आप इधर आ जाए। हारून भाई, आप दोनों आपके साथ बैठ जाइए। चलिए आप वहाँ बैठ जाए और आप यहाँ बैठ जाए। सन भाई जी आराम से। माशाअल्लाह माशाल्लाह। जी अशील भाई। जी अशील भाई, ये देखें, ये इस तरीके से आपको बनाना है। फिर उसके बाद माशाअल्लाह। आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड तो हो रहा है, लेकिन ये लग रही है जैसे बुक है, जी जी लेकिन इसके अंदर इसके पेज भी हैं। ये इसी तरह बनेगा, बस इसकी यही समझना है, बाकी सब आसान है। अच्छा तो इसके बाद हमने फिर इस पे गिफ्ट पेपर लगाने हैं। अजीब भाई, इसमें कितना टाइम लगता है? 15 मिनट, अच्छा माशाल्लाह। जब तक आप अपना अगला सेगमेंट करें। अच्छा, ये कार्डबोर्ड आपने कहाँ से लिया? ये कार्डबोर्ड जैसे अगर घर में कोई कार्टन वगैरह सामान आता है तो उसमें बच जाते हैं, तो इससे माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। जी मेरा नाम आयशा तारी है, मैं कराची बात कर रही हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम मुजम्मिल शहजाद खान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत शौक से देखता हूँ और मैं आज आपको अपना मदनी मकसद बताना चाहता हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। जी अगली कॉल।
जी अशील भाई, अब आपको थोड़ी देर लगेगी इसको बनाने में? बस कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट भी लगेंगे। तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ लेते हैं अपने, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी आप बढ़ लें। जी मदनी लेकिन नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जाने। तो हसन भाई बताएंगे आपको हमारा अगला सेगमेंट क्या है? तो मुबीन भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा अगला सेगमेंट है तज़किरतुल अंबिया। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसनैन भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा वहाँ तशरीफ लें। जी जी प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के 4 ऐसे नबी हैं जिनकी अभी तक ज़ाहिरी वफ़ात नहीं हुई। जब क़यामत करीब आएगी तो वो वफ़ात पाएंगे। यूँ तो अल्लाह पाक का हर नबी ज़िंदा है, मगर उनको एक लम्हे के लिए मौत आती है, दुनियावी ज़िंदगी की तरह दोबारा शुरू हो जाती है। अब वो 4 नबी कौन से हैं, मैं आपको पहले उनके नाम बताता हूँ। और हाँ प्यारे बच्चों, इनमें से 2 नबी ज़मीन पर होते हैं और 2 नबी आसमान पर होते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रहते हैं और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर होते हैं। आज हम अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अहम मालूमात जानेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और आपका नाम बलिया और आपके वालिद का नाम मलकान है। इस तरह आपका मुकम्मल नाम अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान है। माशाअल्लाह। बलिया सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र के मायने सब्ज़ चीज़ के हैं। ये जहाँ भी बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती हसनैन थी। भाई आज आप माइक से शिफ्ट कर लें माइक से। ताकि बच्चों का आवाज़ पहुँच सके। हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए आपको लोग खिज़र कहते थे। जो मुसलमान इनका और इनके वालिद का नाम और इनकी कुनियत याद रखेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका खात्मा ईमान पर होगा। तो माशाअल्लाह। मुबीन भाई कितनी प्यारी फजीलत है, तो हम भी याद कर लेते हैं इनका नाम, इनके वालिद का नाम और इनकी कुनियत। प्यारा बच्चों मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप याद करना इंशाअल्लाह। अबुल अब्बास बलिया बलिया बिन मलकान। बिन मलकान। अबुल अब्बास अबुल अब्बास बलिया बलिया बिन मलकान। बिन मलकान। इस तरह आपका पूरा नाम है अबुल अब्बास अबुल अब्बास बलिया बलिया बिन मलकान। बिन मलकान। तो मुबीन भाई किसी से सुनेंगे आप? जी इंशाल्लाह सब चीज़ सुनते हैं। तो वो जो ऊपर माइक पड़ा हुआ कौन बताएगा? एक मिनट हसनैन भाई, आप एक बार दोबारा दोहरा दें ताकि सबको याद हो जाए। जी। अबुल अब्बास बलिया बलिया बिन मलकान। बिन मलकान। अबुल अब्बास अबुल अब्बास बलिया बलिया बिन मलकान। बिन मलकान। माशाल्लाह। जो हसन भाई आप भी तशरीफ ले यहाँ पे। जी बिल्कुल। जी तो कौन बताएगा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम? जी इनका नाम, इनके वालिद का नाम बिल्कुल। और इनकी इनकी कुनियत। कुनियत। कुनियत कौन बताएगा? चलिए आप बताएं। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का पूरा नाम अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, इनका नाम, इनके वालिद का नाम और इनकी कुनियत जो याद रखेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा। तो जन्नत में तो सबको जाना है, जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। समंदर में लोगों की रहनुमाई करना आपकी ड्यूटी है। आप हर साल हज फरमाते हैं। सुभान। हज के बाद हर साल आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से जमज़म शरीफ के पास मुलाकात भी करते हैं। और आप हर साल हज के बाद
آب زمزم شریف پیتے ہیں، اس کی برکت سے آپ کو پورے سال کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ پورے سال تک کھانے پورے پینے سال تک ماشاءاللہ. حضرت خضر علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری انتقال فرمانے کے بعد تعزیت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تشریف لائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسوں میں بھی آپ نے بہت زیادہ کرم فرمایا اور لوگوں کو نوازا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جنگل میں مشکل کے وقت مسلمانوں کی مدد فرماتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں. جی کال پلے کریں. مبین بھائی، میں آپ لوگ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میرا نام حذیفہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد بتاؤں گا. ہمارا مدنی مقصد یہ ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنی اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ کال شامل کر لیتے ہیں. جی میرا نام نور سحر ہے اور میں سرگودا کے شہر پھلروان سے بات کر رہی ہوں. میں مدنی چینل بچوں کی شام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ مدنی چینل کے پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں کے دل میں خوشی تاری ہو گئی کہ بھائی اب اگلا سیگمنٹ آ رہا ہے، مزہ آئے گا اس میں. ماشاءاللہ. جی اگلی کال. آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ماشاءاللہ. ابھی جو کال آئی تھی انہوں نے بولا تھا آپ کی شام، تو یہ آپ کی شام نہیں، یہ بچوں کی شام ہے، سارے بچوں کی شام ہے. جی اگلی کال. میرا نام محمد عمر رضا ہے، میں کابوریا کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے مبین بھائی، آپ کا پروگرام سے بہت اچھا لگتا ہے. میں اور میرے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ کے سارے سیگمنٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ پروگرام میں آئے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. تو جی پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا سوال ہے جسے آپ دن میں جتنی بار پوچھیں تقریباً ہر بار بالکل الگ جواب ہوگا، لیکن جواب ہر بار درست ہوگا. کون بتائے؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک ایسا سوال ہے جسے آپ دن میں جتنی بار پوچھیں تقریباً ہر بار بالکل الگ جواب ہوگا، لیکن جواب ہر درست ہوتا ہے. جواب ہر بار درست ہوتا ہے. چلیں آپ بتائیں اپنا نام. میرا نام عبداللہ الطاف ہے. ماشاءاللہ. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گھڑی، ٹائم. جی اس کو سوال کی طرف بنا لیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں کہ ہر دفعہ ہر کوشچن جو ہم پوچھتے ہیں وہ اس کا سوال لیکن صحیح ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ چیز چینج ہوتی ہے. اس کا جواب آپ تھوڑا لمبا کر رہے ہیں، تو یہ اس کا جواب یہی ٹائم کیا ہو رہا ہے، یہ بھی یہ اس کا سوال تھا. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بچوں سب صحیح جواب آئے. سبحان اللہ کی زوردار صدا آنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی تو پیارے بچوں اگلے سوال کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. چلیں یہ بتائیں تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟
चलिए मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, तमाम फरिश्तों के सरदार कौन हैं? चलिए कौन बताएगा? जी कौन बताएगा? चले चले आप बता। आपका नाम? सलीत रज़ा। माशाल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब दिया, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त था। माशाल्लाह। ये ले भैया आपके लिए सलीत भाई तोहफा। माशाल्लाह। जी तो अगला सवाल की तैयारी मिला बच्चा आप लोग? खाना काबा किस शहर में है? सब मिलके एक साथ बोल क्या मुकर्रमा में। माशाल्लाह। सवाल एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, खाना काबा किस शहर में है? और इसका जवाब ये है मक्का मुकर्रमा में। चलिए तो चौथा सवाल जी हसन भाई आप करूँ सवाल? तैयार हैं? माशाल्लाह। बताएं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ है? वापस दोहराता हूँ, बताएं अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ पर है? आप बताएं जवाब। माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उमर रज़ा तारी है जी। इनका मज़ार बाबुल मदीना कराची में है। जी माशाल्लाह, बाबुल मदीना कराची में है। आपने जवाब दिया, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपके लिए तोहफा भी आमीन। जी अगला सवाल, कुरान पाक पे अच्छा माइक जो है वो उल्टा से कभी भी नहीं लेते जी सिंह भाई, ठीक है जी। अगला सवाल, कुरान पाक में आयत सजदा कितनी है? माशाल्लाह, सबको आते हैं, वाह क्या बात है। चलिए आप कुरान पाक में आयत सजदा 14 है। आपने बताया कि कुरान पाक में आयत सजदा 14 है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो आप भी बताएंगे अब्दुल्ला भाई कुछ? आप सवाल के जवाब देंगे? बोले जी 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 वाकई में देंगे। चलिए माशाल्लाह। चले बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। तो मुबीन भाई जो दूसरा सवाल है ना वो ज़रा इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलिए मैं तोहफा देने के लिए तैयार हूँ। चले चले सवाल करता हूँ मैं। अगर आपके अब्बू आपको 100 रुपए दें और 60 रुपए के आप फ्रूट ले लें और 15 रुपए का आप एक पेन ले लें, तो बताएं कितने रुपए बचेंगे? बताना नहीं है, जब खड़ा करूं तो बताइएगा। और खड़े भी नहीं, खड़े ना चले मुबीन भाई आप बताएं, किससे पूछूं? मैं बताऊं? सवाल का जवाब बताऊं? नहीं आप बताएं किससे पूछूं मैं? किससे पूछे? चलो उनसे पूछ लेते हैं। इनसे चले। मेरा नाम सलमान है। माशाल्लाह। 25 रुपए बचेंगे। अच्छा 25 रुपए बचेंगे। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, कंफर्म है ना आप? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सवाल मैंने किया था कि अगर आपके अब्बू आपको 100 रुपए दें और आप 60 रुपए के 60 रुपीस के फ्रूट ले लें और 15 रुपए यानी 15 रुपीस के एक पेन ले लें, तो बताएं आपके पास कितने पैसे बचेंगे? तो जी माशाल्लाह 25 रुपीस बचेंगे आपके पास। माशाल्लाह। अगला सवाल जी तो अगला सवाल ये है कि हरकत किसे कहते हैं, इन्हें कैसे पढ़ते हैं? हरकत किसे कहते हैं और इन्हें कैसे पढ़ते हैं? भाई अनस भाई, मुझे आपका नाम भी याद हो गया। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। दोबारा जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो चले मुबीन भाई बढ़ते हैं अपने अगले, मुबीन भाई प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दिलचस्प कहानी। बच्चों की शान। जी हारून भाई कैसे
कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो हारून भाई आज किस कहानी का आपके टॉपिक क्या है मेन? आज मेरी कहानी का टॉपिक है खुद गर्जी। अच्छा जी, आप सुनाए कहानी। जी, तो प्यारे बच्चों, एक किसान और उसका बेटा थैली खोल रहे थे कि बराबर दीवार से एक चूहे ने झांक कर देखा और उसने सोचा कि इस थैली में क्या हो सकता है। कोई खाने पीने का सामान होगा, अगर खाने पीने का सामान है तो आज मज़ा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उसने थैली को देखा तो उसमें एक चूहेदानी थी, जिससे चूहा पकड़ा जाता है, उसे चूहेदानी कहते हैं। वो चूहेदानी थी, वो तो देखकर डर गया और उसने सोचा कि ये लोग मुझे पकड़ने के लिए चूहेदानी लेकर आ गए हैं। फिर क्या किया उसने, फिर वो अपने दोस्तों के पास गया और बताना शुरू हो गया कि घर में चूहेदानी आ गई है, होशियार, घर में चूहेदानी आ गई है। उसके दो दोस्त थे, मुर्गा और बकरा। वो पहले मुर्गे के पास गया और बताया, तो मुर्गे ने गर्दन ऊपर करते हुए कहा कि भाई मुझे इससे क्या तकलीफ हो सकती है, तुम्हें इससे बचना चाहिए, चूहे तो तुम हो, इससे तुम्हें खतरा है। वो मायूस हो गया और फिर बकरे की तरफ चला गया और उसने बकरे से ये सारी बात उसने बकरे को बताई। बकरे ने उसे कहा कि भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। और वो मायूस होकर वापस लौट गया और फिर ये सोचता रहा कि मुझे अगर इसी घर में रहना है तो इस चूहेदानी से बचकर रहना पड़ेगा। बस यही सोचते सोचते उसने सिर्फ पूरी रात गुजार दी और फिर वो सो गया। फिर अचानक उसे खट करके आवाज आई और वो समझा कि कोई चूहेदानी में फंस गया है। वो फौरन से चूहेदानी की तरफ गया और उसने देखा कि वहां पर तो एक सांप फंस गया है। और खट की आवाज सुनकर किसान का बेटा भी वहां पर आ गया और उसने बगैर सोचे समझे चूहेदानी की तरफ हाथ बढ़ा दिया और सांप ने उसे काट लिया। सांप का जहर उसके सारे बदन में आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। किसान उसको अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने इलाज के बाद उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी और वो कुछ दिनों बाद घर आ गया, लेकिन उसे कमज़ोरी रहती थी। किसान ने उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए मुर्गे को ज़िबा करने का सोचा। उसने अगले दिन मुर्गे को ज़िबा कर दिया और उसका सूप बनाकर अपने बेटे को पिला दिया। और हालचाल पूछने के लिए जो मेहमान और रिश्तेदार वगैरह आते रहते थे, उसने उसे बकरे को ज़िबा करा और उसका गोश्त खिला दिया। वो तो ठीक हो गया कुछ दिनों में, लेकिन चूहे को अपने उन दो खुदगर्ज दोस्तों के बारे में याद आया कि इन्होंने अपनी खुदगर्जी की वजह से अपनी सारी जान यानी वो मौत के मुंह में चले गए। प्यारे बच्चों, देखा आपने, हमें कभी भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। आप नियत करते ना कभी भी खुदगर्ज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अगर हम खुद मुसीबत और तकलीफ से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जिसने किसी मोमिन से दुनिया की तकलीफ दूर की, अल्लाह पाक इसकी क़यामत की तकलीफ दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि आज हमारे प्रोग्राम में कितने सारे सेगमेंट्स थे। हमने अपने सारे प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करे। तो अशीर भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अशीर भाई ने बना लिया है। अशीर भाई आप जल्दी जल्दी दिखा दें। मुबीन भाई ये देखें, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखें, इसको अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर माशाल्लाह कितने प्यारे। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत देता फरमाए। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि आज हमारा प्रोग्राम दो होस्टों ने करा और ये बहुत अच्छे चला हमारा प्रोग्राम, इसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम में पहुँचा। इंशाअल्लाह तो आपसे कल मुलाकात होगी न्यू सेगमेंट्स के साथ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल।